And one more thing, when you are writing about the author, see, when you are writing annotations, you have to follow introduction, context, explanation, and interpretation. When you are writing introduction and context, hi friends, welcome to our BZC Exam Code channel. Today we are going to learn Unit 6 of the English from the poetry The Highwayman, which is written by Alfred Noyes. So, when you are reading the heading Highwayman, what do you understand? You are getting the meaning as the man is on the highway. So, and he falls with the landlord daughters. Yes, that is absolutely right. But the man which is on the highway, the man who is on the highway, he's a robber. He is called Ballad. Look up the definition and some examples about the author. So, do you know what is ballad? And look up the definition with some example is asking. So after reading about the author, about the text and the poem, you'll able to answer these questions. So don't worry, after learning this all, you'll be definitely able to answer these questions. About the author, Alfred Noyes and the love story has been described in this poem. So we'll deal with the poem sequentially. So pre-reading activities. So before reading this poem, you just go through these questions. The textbook, the speaker is asking, who do you think is a highwayman? After learning this poem, you'll come to know. But before learning, you just go through these questions. And what is your opinion of tragic love story in literature? So what is your opinion on tragic love story? Means devastating love story. So do you know what a ballad is? Yeah, ballad is a poem and which have the sequence of A, B, C, B rhyme. Means there is at second stanza, this is first stanza, suppose A is the first stanza, B is the second stanza and C is the third stanza and B is the fourth stanza. The word in a second stanza is a rhyming word with the fourth stanza. As well as interpretation. Introduction you'll write from about the author. This is the introduction you'll write from here. Context and interpretation you'll write from about the text. In the text you'll get what is context means you're giving a overview of this poem. You'll write that overview in a context. In explanation, like what is your opinion, you'll write, and some it's better if you write 1-2 slogans. So whatever the attractive points you'll write in the interpretation. Explanation, whatever you understand you can write. So when you are writing, so we are going to get 12 marks for annotation. So you are at least minimum you have to write 3 pages, one annotation. If you write 4 pages, that is what? 2 Words for Memory was published in 1953. So about the contest, about the text, published in 1906, Better to Skip. The Highwayman is considered one of the Noyes' greatest work, yes, and it is romantic ballad set in the rural England. So where it is famous in the rural England. Good and best I can say. It's better if you can write 4 pages. So let us start about the author. Alfred Noyes, 1880 and 1958. He born. Better to skip the date of birth because in examination when you go, there will be a khichdi in your mind. You can't remember all the authors, all the poet date of birth. So better to skip. Just remember the name. If you remember where he is an English poet or British poet, it's better. You can, when you read, you just in your mind it will get imprinted. So whatever you remember, just try to remember that during exam also. My pure suggestions to you all that whatever you are reading, just underline the easy words. Like in exam, Alfred Noyes, okay, British poet I can remember, so I underline. Because when you underline during examination, it's easy to write the words. He's a short story writer, it's very easy. Playwright, novelist, for all authors you can write. He's a writer, playwright, novelist, well known for the traditional lyrical poetry. He's well known for what? Traditional lyrical poetry, you know na? First person will only there in lyrical poetry. Means second person and third person won't be there. Only first person will be there, and that is what the lyrical poetry. So
his well-known work is this, and his prominent works are The Highwayman है, Barrel Organ है, The Trilogy of Torch Bearer, etc. So whatever you remember better, you can just Highwayman is prominent, you can just remember this. And the Barrel Organ, if you remember, it's good and well. If you don't remember, skip it. He was also known for the anti-war ballad like the Victory Balls. So he was also well known for what? Victory Ball. He was immensely popular during his lifetime. Everyone are popular. If you see not these author only, if you see other author also, they will write they are immensely. That means they are very popular during their lifetime. And his autobiography, so some words are there you can keep for everyone, so better if you can keep. His autobiography is Worlds for Memory. So he's a means it's famous means it also started, it's set in the rural England means it was happened in the rural England means village of the England in the 18th century. The poem represents the tragic love story, means it's a devastating love story of the highwayman and the best जो landlord daughter है. In first part में we'll learn about the two lovers who wishes to be together, and the Tim will be there who loves the best and wishes they should never unite. Who should never unite? Landlord daughters and highwayman. In second part you will see that the king's soldiers, he tried to just kill the highwayman, and then what happened, the two lovers has been lost their life. The last two stanzas of the poem forms a epilogue to the story. The last two stanzas will be there now, that concluded. Epilogue means that concluded the stories. So let us see what was have been informed by the Tim. Who is Tim here in this story? He is a घोड़े को पालने वाला है, मतलब घोड़े को देख रेख करता है. स्टेबल रहता है ना घोड़ों का. They look after the horses. Attempt to ambush the highwayman, ultimately leading to two lovers losing their life for each other. So here in the text. So the wind was a torrent of darkness among the gusty trees. Means wind कैसा है, बहुत तेज फ्लडेड. टॉरेंट बोले तो वो फ्लडेड हो रहा है, उतना तेज चल रहा है हवा, बहुत डार्कनेस है. अमंग द गस्टी ट्रीज मीन वो ट्रीज जो बहुत थिक ट्रीज है वो भी क्या हो रहे हैं, हिल रहे हैं, गस्टी ट्रीज. सो विंड ऐसी है, बहुत डार्कनेस है, विंड बहुत तेज चल रही है, और वो ट्रीज भी क्या आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग विंड से सब हिल रहे हैं, गस्टी ट्रीज. द मून वॉज घोस्टली गैलियन टॉस्ड अपॉन द क्लाउडी सी. मून भी कैसा है कहते, घोस्टली है, बहुत डरावना दिख रहा कहते उस दिन. मून वॉज अ घोस्टली मीन्स घोस्ट के जैसा दिख रहा है मून. गैलियन टॉस्ड अपॉन द क्लाउडी सी. गैलियन मतलब शिप है जिसमें लोग, गैलियन मीन्स शिप ओनली. टॉस्ड अपॉन द क्लाउडी सीज, वो शिप कैसा टॉस हो रहा है, टॉस यू नो ना, टॉसिंग, फ्लिपिंग. सो क्या हो रहा है, टॉस्ड अपॉन द क्लाउडी सी. वो तो उतनी तेज हवा चल रही है, मून डरावना दिख रहा है. एंड सो रोड भी बहुत स्मूथ है, मतलब कोई नहीं है रोड पे, बहुत स्मूथ है. ओवर द पर्पल मोर, मोर मतलब बैरन लैंड को हम बोलते हैं. पर्पल मोर, पर्पल यू नो ना, मतलब उधर कुछ भी नहीं है, बहुत बैरन, उधर ना हरियाली है ना कुछ है, पूरा उजड़ा उजड़ा जैसा है. एंड द हाईवे मैन केम राइडिंग राइडिंग. वैसे टाइम पे कौन आया, हाईवे मैन आया. राइडिंग राइडिंग, द हाईवे मैन केम राइडिंग अप टू द ओल्ड इन डोर. वो वैसे टाइम पे कौन आया, वो हाईवे मैन आया. किधर आया, ओल्ड इन डोर के पास आया. ओल्ड इन डोर कने कौन रहते हैं, ओल्ड ये इन, इसका मतलब इन्हीं है. ओके, आई एन बोलते भी इन्हीं. ओके, सो ओल्ड इन डोर, वो जो लैंडलॉर्ड का डॉटर है ना उसके पास आया. ही हैड अ फ्रेंच कुक्ड हैट ऑन हिज फोरहेड, ए बंच ऑफ लेस एट हिज चिन. तो ऑथर बोल रहे हैं कि फ्रेंच हैट, फ्रेंच कॉक्ड हैट बोले तो अभी हमारा हैट कैसा रहता है, ऐसा रहे कि ऐसा नीचे स्ट्रेट रहता है. जब ये फ्रेंच कॉक्ड हैट रहता है ना, ये जो उसके रिम्स है ना वो थोड़े ऊपर टेढ़े हो जाते, ऐसा टेढ़े हो जाते, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेंच कॉक्ड हैट. उसके जो हाईवे मैन है वो क्या, कौन सा हैट पहना है, वो
फ्रेंच कॉक्ड हैट ऑन हिज फोरहेड, ए बंच ऑफ लेस एट हिज चिन। और उसके फेस पे ऐसा, उसके चिन पे ऐसा उसका फेस है समझो, तो ऐसा उसका चिन पे क्या लगा है, लेस लग के, बंच ऑफ लेस एट हिज चिन। ओके, इसका चिन इधर है समझो। ओके, ए कोट ऑफ क्लैरेट वेलवेट, उसका कोट किसका बन का है, क्लैरेट वेलवेट। क्लैरेट मतलब ये वेलवेट बहुत स्मूथ रहता है, वैसा वाला वेलवेट से उसका कोट बना है। द ब्रीचेस ऑफ ब्राउन डू स्किन, उसका जो भी स्किन है, ब्रीचेस, ये एक ट्राउज़र है, वो नी से थोड़ा नीचे रहता है, ऊपर नहीं नीचे रहता है। सो द ब्रीचेस ऑफ ब्राउन डू स्किन, वो डू स्किन का कैसा ये डू स्किन का बना है। उसका जो ट्राउज़र है, पहले शूज़ बहुत ऊपर तक पहनते थे, नी के ऊपर तक पहनते थे, तो उनका पैंट कहाँ तक है, उनका जो भी ये ब्रीचेस है, मतलब वो घुटनों के नीचे तक पैंट आता है ना, वो पहने थे उन्होंने, ब्राउन डू स्किन। और जो वो पैंट था वो कौन से लेदर का बन के था, ब्राउन डू स्किन, मतलब वो हिरन का कुछ स्किन का बन के रहता है। सो ब्राउन बहुत टफ़ रहता है, मतलब टफ़, कपड़ा पकड़ने में टफ़ रहता है, मगर ऊपर बहुत स्मूथ रहता है डू स्किन। दे फिटेड विथ नेवर अ ब्रिंकल, वो उनकी फिटिंग कैसी है कहते, एक ब्रिंकल नहीं आए जैसी उनकी फिटिंग है कहते, उतना उन्होंने परफेक्टली ड्रेस्ड है उनका मतलब। हीज बूट्स वेयर अप टू द थाइस, उनके बूट्स कहाँ तक है, थाई तक है। एंड ही रोड विथ ए ज्वेल ट्विंकल्ड, और उन्होंने रोड राइड कैसा कर रहे हैं, एकदम चमकते सितारे के जैसा। हीज पिस्टल बुट्स अ ट्विंकल, जो पिस्टल पकड़ते हैं ना, जो गन को हम पकड़ते ऐसा मारते हैं, जो पकड़ने का एरिया रहता है ना, बुट्स बोलते हैं, वो कैसा शाइन कर रहा है, वो भी शाइन कर रहा है ट्विंकल के जैसा, स्टार के जैसा। हीज रेपियर हिल्स अ ट्विंकल, रेपियर हिल्स मतलब जो उनकी रेपियर मतलब तलवार, जो तलवार भी जो पकड़ते हैं ना, वो भी ट्विंकल कर रहा करते। अंडर द ज्वेल स्काई मीन्स ट्विंकलिंग स्काई, ओवर द कॉवल्स ही क्लैटर्ड, कॉवल्स मतलब वो पहले ज़माने में जो क्या बोलते हैं, रोड्स या जो भी ज़मीन बन के रहती थी, उसके ऊपर कॉबल्स रहते थे, मतलब सर्कुलर पेबल्स रहते थे, और वो बहुत नियरर रहते थे। जब उसके ऊपर कोई चलता है ना, ही क्लैटर्ड मतलब उसका जो घोड़ा ठक 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 आवाज़ आती ना, सो वो वाली क्लैटर्ड। ओवर द कॉवर्ल्ड ही क्लैटर्ड, मतलब वो जो घोड़ा चले जब आवाज़ आती ना, उसको क्लैटर्ड बोलते। सो उन्होंने क्या करा, कॉवर्ल्ड करने आया, मतलब वो रोड पे आया और वो क्लैटर्ड करा। एंड क्लैश इन द डार्क इन यार्ड, और वो क्या करा, क्लैश्ड करा, मतलब वो तलवार की ऐसे आवाज़ आती ना, मतलब दो तलवार मिले जब वो आवाज़ आती ना, तो वैसा। ही क्लैश्ड इन डार्क इन यार्ड, नो वो तलवार के जैसा साउंड कर लेते वो लैंडलॉर्ड। ही टैप्ड विथ हिज विप, जब वो आया, क्लैश्ड करा उसके स्वॉर्ड से, मतलब वो जब आया वो तलवार निकाल के ऐसा कुछ वो साउंड आया करते। सो क्लैश्ड इन द डार्क इन यार्ड, मतलब वो डार्क यार्ड में वो तलवार निकाले, सो साउंड आया करते। ही टैप्ड विथ हिज विप ऑन द शटर बोलते विंडो, तो वो क्या करा, टैप्ड करा, उसका विप रहता है ना, ऑन द शटर। बट ऑल विल लॉक्ड एट बैरन, मगर वो जब वो ऐसा करा तो वो पूरे क्या थे, लॉक्ड एंड बैरन थे, मतलब कोई नहीं था। ये विजिल ट्यून टू द विंडो, जब उन्होंने क्या करा, विजिल करा ट्यून टू द विंडो। हु शुड बी वेटिंग देयर, उसको पता है कि एक जने उसके लिए वेट करते, वो वेट करने वाला कौन है, लैंडलॉर्ड ब्लैक आई डॉटर। हाउ शी इज़ ब्लैक आई, उसका नाम क्या है, बेस, द लैंडलॉर्ड डॉटर, प्लेटिंग अ डार्क रेड लव नॉट इनटू हर लॉन्ग ब्लैक हेयर। प्लेटिंग मतलब वो चोटी डाल ली, कैसे, डार्क रेड लव मतलब रोज़ वो हेड्स में। एंड डार्क इन द डार्क ओल्ड इन यार्ड, बहुत डार्क है कहते उसके जो जहाँ वो मिलते हैं इन यार्ड में। ए स्टेबल विग्ड क्रिक्ड मीन्स जो घोड़े रखते हैं ना, उधर एक आवाज़ आई, विकेट क्रिक्ड मतलब जब विकेट मीन्स हुक,
so that made a high pitch sound. Stable who creaked. वे टिम जो वो मैं बोली ना स्टेबल को दे बोलता वो घोड़ों को देखता है, द टिम द ऑस्लर लिजेंड. ऑस्लर मतलब जो घोड़ों का देख रेख करे उसे ऑस्लर. जो टिम द ऑस्लर लिजेंड, उसको वो जो स्टेबल विकेट क्रिक्ड मतलब वो स्टेबल में से उसको आवाज़ आई. जब वो किसको ये स्टेबल में से किसको आवाज़ आई? टिम को आवाज़ आई. ओके. हिज फेस वॉज वाइट एंड पीक्ड. उसका फेस कैसा है कहते हैं? वाइट एंड पीक्ड है. हिज आईज वेर हॉलोड ऑफ मैडनेस. उन लोगों को आवाज़ आई. ये जो इन लोग मिल रहे थे ना, लैंडलॉर्ड डॉटर और हाईवे मैन, तो वो स्टेबल का ने जो टिम है उन लोगों को देख लिया, इसका मतलब. और उसका फेस कैसा है? किसका? हीज फेस मतलब किसका फेस? हाईवे मैन का फेस. वो कैसा है? वाइट एंड पीक्ड है. हीज आइज वेर हॉलो ऑफ मैडनेस. उसके आइज में क्या भर के गए थे? मैडनेस भर के. किसके लिए? फॉर लैंडलॉर्ड डॉटर. हीज हेयर इज़ लाइक ए मॉल्डी है. उसके मॉल्डी हेड्स में चिपके चिपके हेड्स रहते ना, वैसा उसको मॉल्डी है मतलब वो सूखे घास रहती ना, वो चिपकी चिपकी ख़राब हो जाती, वैसे उसके हेड्स है. किसके? हाईवे मैन के. बट ही लव दी लैंडलॉर्ड डॉटर. द लैंडलॉर्ड रेड लिप डॉटर. वो लैंडलॉर्ड की जो डॉटर है उसके लिप्स कैसे हैं? रेड है. डम एज डॉग ही लिसन. वो कैसे उसको सुनता है कहते हैं? डॉग के जैसा. ही हर्ड द रॉबर्ट से वन किस माई बोनी स्वीट हार्ट. वो बोलता है कि ओनली वन किस माई बोनी स्वीट हार्ट मीन्स वो पतली है. उसका मतलब बोनी स्वीट हार्ट मीन्स शी इज़ पतली. आई एम अ प्राइज टू नाइट. ओनली वन किस that is like a prize for me tonight. Who will say this all? Highwayman. But I shall be back with yellow gold before the morning light. वो उसको प्रॉमिस करके जाता है कि मैं एक बैग येलो गोल्ड लेके आऊँगा सुबह होने से पहले. यस इफ दे प्रेस मी शार्पली. वो बोलता है कि अगर वो लोग मुझे मारना चाहे, प्रेस मी शार्पली, द हैरी मी थ्रू द डे. अगर उन लोग मुझे मोलेस्ट करे डे में, ओके, प्रेस करें मुझे डे में, उन लोग मोलेस्ट करें, देन लुक फॉर मी बाई मून लाइट. और वो बोलता है कि मुझे रात तक देखना, मेरे लिए वेट करना. वॉच फॉर मी बाई मून लाइट. I'll come to you by moonlight. He'll say that I'll come to you by moonlight. Though hell should bar the way. Hell अगर आ गया तो भी मैं उसको bar the way, उतने हिंड्रेंस आए तो भी मैं आऊँगा. हेल शुड बार द वे. हेल भी आया उतनी मतलब उतनी डेट तक मेरा सिचुएशन आए तो भी उसको बार करके मतलब उसको क्रॉस करके मैं आऊँगा. ही रोज्ड अपराइट इन द स्टिरअप. वो क्या हुआ फिर? वो स्ट्रेट हो गया. स्टिरअप मतलब उन लोगों के फुट को सपोर्ट करने का एक रहता है घोड़ों के ऊपर, उसको स्टिरअप बोलते हैं. सो वो सीधा हो गया इन द स्टिरअप. ही स्केट्स कुड रीच हर हैंड. मतलब स्केट्स मीन्स वो इनसफिशेंट है. कुड रीच हर हैंड, उसके हैंड तक नहीं जा सकता. वो उसके ऊपर बैठ गया. उसका क्या बोलते हैं, घोड़े का जो पैर रखने का रहता उधर पैर रख के वो बैठ गया. वो सोच रहा है कि काश मेरा हैंड छो जाता. बट शी लूजेंड हर हेयर इन द केसमेंट मीन्स विंडो. उसके बाल क्या करे करते? लूज़ कर दिए करते इन द केसमेंट मतलब बाल भी बांध दिए इधर विंडो में. हीज फेस बर्न लाइक ए ब्रांड. उसका फेस कैसा? ब्रांड मतलब हॉट आयरन के जैसा. उसका बाल केसमेंट विंडो में बांध के लूज़ हो गए. बांध दिए तो लूज़ हो जाते हैं ना. उसका फेस वो सब देख के कैसा वो बोल के गया ना कितना भी मैं आऊँगा बोल के. उन्हें स्टिरअप कर लिया, वो घोड़े पे उसका पैर रख लिया और वो चाह रहा कि काश मेरे हैंड्स विंडो तक चल जाते. उसके बाल कैसे है? लूज़ हो गए. क्यों लूज़ हो गए? क्योंकि वो विंडो में बांध दिए गए हैं. हीज फेस, उसका फेस कैसा? एक हॉट आयरन के जैसा जल रहा है. एज द ब्लैक कैस्केड ऑफ परफ्यूम केम ट्रम्बलिंग ओवर हिज वेस्ट. तो ब्लैक परफ्यूम आया करते. किसको आया परफ्यूम? हाईवे मैन को आया. ए ब्लैक कैस्केड ऑफ परफ्यूम मतलब उसके बाल. ब्लैक कैस्केड मतलब उसके बालों में खुशबू रहती थी. वो ओवर हिज ब्रेस्ट, उसके ब्रेस्ट तक आए. एंड ही किस्ड इट्स वे इन द मून लाइट. वो वे को क्या करा? मून लाइट में किस्ड करा. वो
ओ स्वीट ब्लैक वेव्स इन द मूनलाइट, उसके बाला कैसे स्वीट ब्लैक वेव्स के जैसे है। देन ही टग्ड एट हिज रेन, मतलब पता है घोड़ों को कंट्रोल करते हैं ना, ऐसा ऐसा पकड़ के चलते हैं ना, सो वो रेन। देन ही टग्ड एट हिज, टग्ड बोले तो ड्रैग कर लिया, हिज रेन इन द मूनलाइट एंड गैलप्ड अवे टू द बेस्ट, और वो कहाँ चले गया, गैलप्ड मतलब वो जल्दी जल्दी वेस्ट की तरफ चले गया। ही डिड नॉट कम इन द डाउनिंग, मतलब अर्ली मॉर्निंग को वो नहीं आया। ही डिड नॉट कम एट द नून को भी नहीं आया। एंड आउट ऑफ द टाउनी सनसेट में, जब वो थोड़ा लाल ही आ जाती है ना सनसेट के, जब उसको टाउनी सनसेट बोलते हैं। बिफोर द राइज ऑफ द मून व्हेन द रोड वॉज जिप्सी रिबन, मीन्स वॉट, स्लीपरी रिबन रहता है, बहुत चिकना रिबन। रोड वैसा आएगा तो बहुत डेंजरस है। लूपिंग द पर्पल मोर, बैरन भी है, कोई नहीं है। रेड कोट ट्रूप के मार्चिंग, रेड कोट ट्रूप आया करते, क्या कर रहा है वो, मार्चिंग। हु वॉज ही, किंग जॉर्ज मैन के मार्चिंग। ये जो रेड ट्रूप बोले तो बहुत सारे टीम है, तो किंग जॉर्ज मैन के मार्चिंग अपॉन द ओल्ड इन डोर, वो पूरे किंग के जो लोग हैं वो किधर आ गए, लैंडलॉर्ड डॉटर के घर पे आ गए। दे सेड नो वर्ड टू द लैंडलॉर्ड, कुछ नहीं बोले। ड्रैंक हिज एल इंस्टेड, जो लैंडलॉर्ड का जो भी बीर था वो पी लिए, एल मतलब बीर। बट दे गैग्ड हिज डॉटर, गैग्ड मतलब वो क्लॉथ लगा दी उसके मुंह के, किसके, उसके डॉटर के, लैंडलॉर्ड। बाउंड हर, बांध दिए। टू द फुट ऑफ हर नैरो बेड, जो उसका पतला सा बेड था उसके फुट पे बांध दिए। टू ऑफ देम नील्ड एट हर केसमेंट, दो जने उसके विंडो कने क्या थे, ऐसा घुटने टिका के बैठे थे। उसके ट्रूप जो आई थी ना, उसके 2 मेंबर्स, वो किंग के 2 मेंबर्स केसमेंट कने मतलब विंडो कने बैठे थे। विथ मस्केट मतलब वो बंदूक लंबी वाली रहती है ना, उसको बोलते हैं। एट देयर साइड दे वर डेडली एट एवरी विंडो, मतलब ऐसा हिले तो भी वो मार देने। डेडली एट एवरी विंडो एंड हेल एट वन डार्क विंडो, और हेल है कहते एक डार्क, वो विंडो कने क्या है कहते, हेल है कहते। फॉर बेस्ट कुड सी थ्रू हर केसमेंट द रोड दैट ही वुड राइड, बेस्ट क्या कर रही, जो हाईवे मैन आता था ना रोड से, वो रोड को देख रही कहते। दे हैड टाइड अप हर टू द अटेंशन विद मैनी स्टिनरिंग जेस्ट, मतलब उसे उसको बांध दिए और उससे गंदे जोक्स कर रहे, बुलिंग, जेस्ट में जोक्स कर रहे, बुलिंग कर रहे। दे हैड बाउंड ए मस्केट बिसाइड हर, उसके बाजू को लोग क्या करे कहते, मस्केट को भी बांध दिए, मतलब वो लंबी बंदूक को बांध दिए। विद द मजल बीनीथ, विद द मजल बीनीथ हर ब्रीस्ट, मजल मतलब वो बंदूक का जो ट्रिगर रहता है ना, वो उसको ब्रीस्ट के नीचे लगाए करते। नाउ कीप गुड वॉच, उन्हें हिली तो भी वो बंदूक चल जाना बोलते ऐसा। एंड दे किस्ड हर, वो रख के और उसको देखते और उसको किस करने लगे करते वो ट्रूप। शी हर्ड द डूम्ड मैन से लुक फॉर मी, वो डूम मैन मीन्स जिसकी मौत अनफॉर्चुनेटली हो जाए, उसको डूम मैन, तो उसको याद वो सुनी थी कि डूम मैन बोला था कि लुक फॉर मी बाई मून लाइट, वॉच फॉर मी बाई मून लाइट, आई कम टू यू, थी मीन्स कम यू, I'll come to you by moonlight, though hell should bar the way. She twisted her hand behind her. मतलब वो अपने हाथों को ऐसा करी, but all the knot held good, वो मगर knots नहीं खुले। She bridged her hand till her finger, मतलब उसका बॉडी को ट्विस्ट करते हुए उसका हैंड फिंगर्स क्या करी, उन्हें खोलने की कोशिश करी उसका मतलब, और उसके फिंगर्स वो पूरे क्या हो गए, वेट हो गए, किसे, स्वेट से एंड ब्लड से। दे स्ट्रेच्ड एंड स्ट्रेन्ड इन द डार्कनेस, वो कैसे हो गए कहते, स्ट्रेच्ड एंड स्ट्रेन्ड इन द डार्कनेस, अब उन्हें पूरी, दे स्ट्रेच्ड हो गए एंड स्ट्रेन्ड इन द डार्कनेस। एंड अर्थ क्राउल्ड बाई ईयर्स, घंटे कैसे जा रहे कहते, सालों के जैसा जा रहे कहते। टिल नाउ ऑन द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, अभी क्या हुआ कहते, मिडनाइट हुआ कहते, अभी तो खाली मिडनाइट हुआ करते। कुड ऑन द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, कोल्ड ऑन द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, बहुत कोल्ड है कहते मिडनाइट में। द टिप ऑफ वन फिंगर टच्ड इट, द ट्रिगर जो टिप रहती वन फिंगर की उन्हें टच करी, एटलीस्ट वॉज हर, वो ट्रिगर उन्हें अपने आप को खुद मार के मर गई।
वो मैं बोली ना उसके ब्रीस्ट कने उन लोग एक बंदूक लगाए थे, वो बंदूक को अपने आप ही उन्हें ट्रिगर करके मर गई. द टिप ऑफ वन फिंगर टच्ड इट. शी स्ट्रोक नो मोर फॉर द रेस्ट. Means she is no more for the rest up. She stood up to attention with the muzzle beneath her. What happened? The tip of one finger touched it. She struck no more for the rest. She is no more. She killed herself by firing the musket. बंदूक से वो खुद ही मर गई. She stood up to the attention with the muzzle beneath her breast. उसके जो beneath उसके breast में जो muzzle थी वो खुद ही चला ली, कैसा कि उसका फिंगर उधर तक चले गया. She would not risk hearing. वो सुन नहीं सकती थी. And she would not strive again. वो फिर से स्ट्राइव करना नहीं, वो सहना नहीं चाहती थी. For the road lay bare. वो उस दिन रोड कैसा था? बहुत खाली था. In the moonlight. Blank bare in the moonlight. Blank है, bare है, कोई नहीं है. The blood of her veins in the moonlight. Robbed to her love's refrain. मतलब वो जो उसका लव है वो उसका मतलब ब्लड से वो क्या करना चाहती थी, सेंड करना चाहती थी कि दैट देर इज़ अ डेंजर, यू डोंट कम. लव रिफ्रेन मतलब अवॉइड, यू डोंट कम. प्लॉट वो आया. दे हर्ड इट द हॉर्स रूफ रिंगिंग क्लियर. प्लॉट इन द डिस्टेंस वेयर द डेफ दैट दे डिड नॉट हियर. तो डॉट आवाज़ आई, वो हॉर्स रूफ रिंगिंग हो रहा बोल के क्लियरली. डॉट इन द डिस्टेंस दे वर डेफ दैट दे डिड नॉट हियर. ये क्या उसके पूरे जो ट्रूप्स थे किंग के वो पूरे सुन लिए. डाउन द रिबन ऑफ मून लाइट मतलब बहुत डेंजरस था. डाउन द रिबन मीन्स सुबह अर्ली मॉर्निंग होने वाली थी. मून लाइट ओवर द ब्रो ऑफ द हिल द हाईवे मैन केम राइडिंग. वो पहाड़ों से आया राइडिंग. द रेड कोट जो रेड कोट उसके ट्रूप थे किंग के, लुक्ड करे प्राइम मिनिस्टर, उसको अच्छे से देख लिए. और वो क्या हुई, स्टूड अप हुई स्ट्रेट, मतलब वो मर गई है, उसको वार्न कर रही है डोंट कम. स्टूड अप स्ट्रेट एंड स्टिल, वो ऐसी ठहरी हुई है. टॉट इन द फ्रोस्टी साइलेंस. वो फ्रोस्टी मतलब बहुत साइलेंस है. फ्रोस्टी पूरा फ्रोस्टी है, साइलेंस है. कोचिंग नाइट भी कैसी है, अगर आप आवाज़ करें तो फिर रिटर्न आने वाली, वैसे उतना साइलेंस है पूरा. नियरर ही केम, बहुत पास आने, वो बेस के पास आने लगा, मतलब उसके घर कने आ रहा था. हर फेस वॉज लाइट. उसका फेस कैसा है कहते, एक लाइट के जैसा है कहते. हर आइज ग्रू वाइड फॉर अ मोमेंट. शी ड्रॉ वन स्टेप डीप ब्रीथ. देन हर फिंगर मूव्ड इन द मून लाइट. एक लंबी सांस लेके उसके फिंगर्स को मून लाइट की तरफ, मतलब शी पास अवे. हर मस्केट शैटर द मून लाइट. वो मस्केट क्या हुआ, ख़त्म हो गया मून लाइट में. शैटर हर ब्रेस्ट इन द मून लाइट. वो किधर गोली लगी, उसके छाती पे लगी. एंड वॉर्न हिम विथ हर डेड. वो जो गोली लगी तो वो वॉर्न करना चाहिए, मतलब वो गोली की आवाज़ आई तो शी वॉन्टेड टू वॉर्न हर लव. ही टर्नड ही स्पर्स टू द वेस्ट. वो क्या हुआ, टर्नड हुआ, मतलब जैसे ही वो आवाज़ आई वो उसके पास आने लगा. वेस्ट में उसका ही घर था, तो उधर फर्स्ट पार्ट 1 में भी वो वेस्ट की तरफ ही मूव हुआ था. फर्स्ट मतलब वो उसका जो घोड़ा पे पैर रखते हैं ना, उधर रख के वो बेस्ट को टर्न हुआ. ही डिड नॉट नो हु स्टूड. उसको पता नहीं है कौन है बोर्ड, मतलब वो आर्म्स के साथ, मतलब उसके जो भी बंदूक के साथ कौन है नहीं मालूम. विथ हर हेड ओवर द मस्केट ड्रेंच्ड विथ हर ओन ब्लड. उसके ओन ब्लड से वो क्या हुई, ड्रेंच हो गई बोल के वो देखा. एंड नॉट टिल द डाउन ही हर्ड इट एंड हिज फेस ग्रू ग्रे टू हियर हाउ बेस्ट द लैंडलॉर्ड डॉटर. जैसे ही उसको बंदूक की आवाज़ आई वो क्या हुआ, उसका फेस क्या हो गया, ग्रे हो गया. बेस्ट कैसी है, बेस्ट लैंडलॉर्ड डॉटर की, बेस्ट जो लैंडलॉर्ड डॉटर है. द लैंडलॉर्ड ब्लैक आई डॉटर हैड वॉच्ड फॉर हर लव in the moonlight and died in the darkness there. वो मूनलाइट को देख के she passed away. मगर वो आए तो जब ही वो बंदूक को चलाई to warn him that there is a danger, I am no more, you go. But he did not done like that. He came towards her. Back he spurred like a madman. फिर से वो कैसा, वो बैक पलट गया एक मैडन के जैसा. Striking a curse to the sky. जैसे कि वो चिल्ला चिल्ला के बद्दुआ दे रहा हो स्काई को.
फिर से वो अब वो जैसा सुन लिया देख लिया ट्रेंच हो गई, वो बैक टर्न हुआ। विद द वाइट रोड स्मोकिंग बिहाइंड हिम, वाइट रोड है, स्मोकिंग है। ही इज़ रेपियर ब्रांच्ड हाई, मतलब वो उसका रेपियर है ना, वो ऐसा बंदूक मार के उसका रेपियर भी, उसकी जो तलवार है वो भी पीछे से जब स्मोकी था और उसको उसकी तलवार को भी मार दिया गया। ब्लड रेड वेर ही स्पर्स इन द गोल्डन नून, वाइन रेड वॉज हिज वेलवेट कोट। सो रेड कलर उसका स्पर हो गया गोल्डन नून में, मतलब कड़क धूप में, ये सब कड़क धूप हो गया, सुबह भी हो गई। वाइन रेड वॉज हिज वेलवेट कोट, वाइन रेड क्या है, उसका जो ऑलरेडी उसके पास एक कोट था ना, वो कैसा हो गया, वाइन रेड हो गया, मतलब पूरा ड्रेंच्ड विद द ब्लड। When they shot him down on the highway, down like a dog on the highway, उसको कैसा मारे गए थे, डॉग के जैसा on the highway, and he lay in his blood on the highway with a bunch of lace at his throat. So and still of a winter night they say when the wind is in the tree. विंटर नाइट में वो बोलते हैं कि जब विंड था ट्रीज में, विंटर की नाइट थी, विंड्स थे, मतलब विंड बहुत तेज़ चल रही थी। व्हेन द मून इज़ घोस्टली गैलियन टॉस्ड अपॉन द क्लाउडी सी, हवा ऐसी चल रही थी कि वो गैलियंस को भी टॉस कर दे रही थी सी के ऊपर, और मून भी कैसा था, डरावना था। व्हेन द रोड इज़ लाइक अ रिबन, रोड कैसी है, एकदम डेंजरस, मतलब पूरी स्मूथ बैरन, नो पीपल, द हाईवे मैन केम राइडिंग, द हाईवे मैन केम राइडिंग द ओल्ड इंडोर, मतलब ओल्ड इंडोर में कौन रहती थी, बेस रहती थी। ओवर द कॉबल्स ही क्लैटर्ड, कॉबल्स को वो क्या करता था, उसके जो घोड़े थे, कॉबल्स वो पत्थरों को ऐसा खुदल लेते, वो आवाज़ क्लैटर की आवाज़ आती थी। क्लैंग इन द डार्क इन यार्ड, मतलब जब वो घोड़े चलते हैं तो एक आवाज़ आती है, क्लैंग इन द डार्क इन यार्ड, उसके यार्ड में वो आवाज़ आई। ही टैप्ड विथ हिज विप्ड ऑन द, वो क्या करा, उसके यार्ड में आके टैप करा विप से उसके शटर, मतलब विंडो को, बट इट्स ऑल लॉक एंड बैरन। हिज विजल, उसका विजल भी कैसा था, एक ट्यून के जैसा था विंडो का ने। एंड हु शुड बी वेटिंग देयर, और वो बोलता है कि एक जनी थी उसके लिए वेट करती रहती थी, वो कौन थी, लैंडलॉर्ड ब्लैक आई डॉटर थी, बेस द लैंडलॉर्ड डॉटर, प्लेटिंग अ डार्क रेड लव नॉट इनटू हर लॉन्ग ब्लैक हेयर। वो बोलते हैं कि वो प्लेट कर, मतलब उसके प्लेटिंग मतलब उसके बाला, उसमें रेड लव नॉट मतलब रोज़ लगाती थी, मतलब उसका प्योर लव था, इनटू हर लॉन्ग ब्लैक हेयर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। थैंक यू।